Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SDCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we will discuss about the new approach, that is post-behavioralism. Post-behavioralism, which was started in USA, and the founder of this approach was David Easton. And in 1969 David Easton opposed behavioralism and propounded post-behavioralism. Post-behavioralism can be called ideological revolution that presents a new approach including both facts and values, and two basic principles are there. The first one is action, second one is relevance. Next one is causes of its origin. In our previous video we have criticized behavioralism and what were the reasons behind what were the drawbacks or shortcomings of behavioralism that works as the causes of its origin, that is post behavioralism. So we will mention all those points here when the examiner asks about the causes of the origin of the post behavioralism. But the main reason behind that was that the behavioralists devoted themselves in building of various conceptual framework, models, theories, etc., and did little thing to solve social, political, economic, and cultural crisis of the world. The post-behavioralists asked what was the use of the research of the behavioralists when they did not take into account acute social problems and the dangers of nuclear and thermonuclear war. Next one is characteristics or features of post-behavioralism. There are 7 points and we will study and understand them one by one. First one is substance must come before technique. It may be good to have sophisticated tools of investigation, but the most important point was the purpose to which these tools were applied according to post-behavioralism. Second one is emphasis on social change. The post-behavioralists see that the contemporary political science should place its main emphasis on social change, not social preservation. The behavioralists seemed to be doing. Next one is reliable solution of contemporary problems. As we have studied in causes of its origin of the post-behavioralism, and we have discussed just now that behavioralism was not helpful in solving the problems the world has been facing. And here comes the relevance. That means whatever study or whatever research we are doing should be relevant to the contemporary problem, should be useful in solving our problems. Otherwise our whole study and research will be proved as useless. Next one is important role of values. The behavioralists laid special emphasis on scientific and value-free approaches and totally ignored the role of values. And the post-behavioralists firmly hold this view that if knowledge was to be used for right goals, value also had to be restored to their proper place. Next one is intellectuals had a role to play. The post-behavioralists argue that the political scientists, being intellectuals, must protect and promote the human values of civilization, and they shouldn't keep themselves away from the social problems or problems whatever the world or the society or the country, whoever is facing problems, and they need to sort out that problem. This is the use of research and the study itself. Next one is action science. This is the one of the two most important principles, that is action and relevance. So action science. The post-behavioralists contend that the behavioralists cannot keep themselves away from action when they are doing the research, and their research has to be put to social use to know, as Easton points out, is to bear the responsibility for acting, and to act is to engage in reshaping the society. Next one is last one is politicization of the profession. And
once it is admitted that the political scientists being intellectuals have a positive role to play in the society, then in order to achieve that goal it becomes inevitable that all the professional associations as well as the universities must be politicized. आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ है कि वह उपागम जो कि व्यवहारवाद के बाद में अस्तित्व में आया। इसका अर्थ व्यवहारवाद अस्तित्व में आया, उसके बाद में क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां रही इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद का जो उत्पत्ति हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म सेम इसकी भी जो उत्पत्ति है अमेरिका में हुई है। इन दोनों के प्रतिपादक सेम है, डेविड ईस्टन। और जो उत्तर व्यवहारवाद है तो 1969 में डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद का विरोध किया। उन्होंने एक नया अप्रोच हमारे सब्जेक्ट को दिया जिसे कि उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ इसी एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है जो कि हमारे सामने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत तथ्य और मूल्य दोनों को ही हम लोग स्थान देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की दो प्रिंसिपल्स हैं, दो नारे हैं। पहला है कर्म, दूसरा है प्रासंगिकता। जब हम लोग इसकी विशेषताएं करेंगे तब हम लोग इनको समझेंगे कि कर्म का अर्थ क्या है और प्रासंगिकता का अर्थ क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कॉजेज ऑफ इट्स ओरिजिन। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के या आगमन के या उत्पत्ति के कारण। तो जो हम लोगों ने व्यवहारवाद की आलोचनाएं की हैं, व्यवहारवाद की आलोचना मतलब व्यवहारवाद की कमियां, और व्यवहारवाद में जो कमियां थी वो इस बात का मुख्य कारण रहा कि व्यवहारवाद को हटा दिया गया, उसकी जगह पर जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उत्तर व्यवहारवाद है वो अस्तित्व में आया। तो जब हम लोग बात करते हैं इसके कारण की कि उत्तर व्यवहारवाद किन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो हम लोगों के पास में मेन वही रीजंस रहते हैं जो हम लोगों ने बिहेवियरलिज्म में किए थे। लेकिन इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह रहा है कि व्यवहारवाद ने जो तात्कालिक समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी वो विश्व के सामने समस्याएं रही हैं, इन्होंने अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च में उससे कोई भी संबंध नहीं रखा है। इनका जो मेन फोकस है वो केवल तकनीकें, पद्धतियाँ, उपकरण इनके ऊपर रहा है। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहा है कि उससे किसी समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं। और जो उत्तर व्यवहारवादी विचारक हैं इनका ये मानना है कि हमारा ऐसा अध्ययन, हमारी ऐसी स्टडी, हमारी ऐसी कोई भी जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल यूजलेस है अगर हम उससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सके। नेक्स्ट आ जाता है इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं हैं। पहला आ जाता है उत्तर व्यवहारवाद का ये मानना है कि जो हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं उसे प्रमुखता दी जानी चाहिए बनिस्बत तकनीकों की। तो तकनीकों की बजाय हमारा जो फोकस है वो उद्देश्य पर फोकस होना चाहिए कि उससे हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त हो। सेकंड आ जाता है एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में हम लोगों ने देखा था कि वो उसमें थोड़ा सा हमें स्टैटिक हमें देखने को मिलता है कि वो डायनामिक नहीं है, किसी भी तरीके से वो गतिशील नहीं है, सामाजिक परिवर्तन पर वो फोकस नहीं करता है, जबकि जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बदलती हैं। इसलिए हमें हमारे अध्ययन में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। थर्ड आ जाता है रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, कि हम लोगों ने ऊपर कर चुके हैं जब हम लोगों ने देखा उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण कि जो कुछ हम लोग अध्ययन या स्टडी हम लोग करते हैं, अनुसंधान हम लोग करते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। और इससे हम लोग जो ऊपर हमारा है एक्शन एंड रेलेवेंस, कर्म और प्रासंगिकता, तो इसे हम लोग प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत का अर्थ है कि हम अनुसंधान किसी भी पद्धति से करें लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि मूल्य ज्ञान की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान की आधारशिला के रूप में कार्य करने का अर्थ है कि यदि मूल्य नहीं होंगे तो ज्ञान का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि हमें नॉलेज है और उसके साथ में हमारे मूल्यों को हम लोग जोड़े रखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वह हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल्स हैड अ रोल टू प्ले, कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी संस्कृति की, हमारी जो सभ्यता है उसके मूल्यों का संरक्षण करना, उसके मूल्यों का संरक्षण करना, हमारी व्यवस्था का संरक्षण करना, ये बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन साइंस। एक्शन साइंस का मतलब होता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान वही होता है जिसके अंतर्गत हम समाज के लिए, देश के लिए, हमारे खुद के सुधार के लिए हम लोग कर्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके लिए डेविड ईस्टन ने कहा है कि कर्म करने का अर्थ है जानने का अर्थ है काम करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में खुद को लगा देना। एंड लास्ट वन आ जाता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन, व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण का अर्थ है कि जितने यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय हैं, संघ है, समुदाय हैं, उन सब का पॉलिटिसाइजेशन किया जाना चाहिए, राजनीतिकरण किया जाना चाहिए, ताकि वे मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आए और उस काम में खुद को लगा दें। That's all for today from my side. Thank you very much.